So before starting, let me introduce our today's host. Our today's host is Anmol Shukla sir, which is our alumni. He has graduated from NIT Raipur in the year 2023. He has done his graduation in BTech, Mechanical Engineering, and he has a profound knowledge and a 6-year experience of teaching Srimad Bhagavad Gita. So, okay, let me introduce sir once again. More and more students are coming. Let's wait for a few more minutes. Let all students come. Okay, let's. Our today's host is Anmol Shukla sir, which is pass out from NIT Raipur. He has done his graduation in BTech Mechanical Engineering in the year 2023, and he has a profound knowledge and a 6-year experience of teaching Srimad Bhagavad Gita. So I will request Anmol sir to carry forward this session. Okay. Thank you, Rohit sir. So now we are starting our today's session. It is session number 1. And today we will try to cover chapter 1 and chapter 2. In Bhagavad Gita, there are 18 chapters, okay, of which chapter 2 and 18 are very big. But we will try to cover chapter 1 and chapter 2. These are very easy. And please focus on the screen because the questions in the quizzes will be from PPT and whatever I will say. Okay, I'm sharing. Okay. If I am audible, then please let me know. Oh, 1 minute. Okay, I am audible. Okay, one more thing, don't use marker. I think it's allowed for you also, but don't use. So we are starting. So this is our first session. Before starting first chapter, at least we should have some basic knowledge of Bhagavad Gita. 1 minute. Okay. So till 12:10 I will take the class because it's almost 11:10. So before starting Bhagavad Gita, we should have some basic knowledge. Who is speaking Bhagavad Gita? Who has written Bhagavad Gita? How many shloks are there? How many chapters are there? So Bhagavad Gita is basically in Sanskrit, and we all don't know Sanskrit, but no worry, we will try our best to understand Bhagavad Gita. So it is written by Srila Vyasdev. Oh, sorry. Srila Vyasdev is the author of Bhagavad Gita and who has spoken Bhagavad Gita. So Lord Krishna has spoken the Bhagavad Gita and who have heard Bhagavad Gita. So Arjun have heard, Sanjay and Dhritarashtra. So there are 4 characters in Bhagavad. Who are they? Arjun, Lord Krishna, and Sanjay and Dhritarashtra. Is there anyone who is having problem with Hindi?
Okay, maybe barbaric also have heard. I don't know, but these four characters are there. So मैं हिंदी में भी बात करूंगा और इंग्लिश में भी, दोनों में। आप चैट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे को दिखते रहेगा। सो भगवत गीता, ये साइंस कब बना? भगवत गीता इज अ साइंस, ओके। एंड व्हाट इज भगवत गीता? भगवत मीन्स विच बिलोंग्स टू लॉर्ड और गिवन बाय लॉर्ड। एंड व्हाट इज मीन्स गीता? गीता मीन्स म्यूजिक। You all know music. There are various musics, songs. So this is a song sung by Bhagavad, means God. So Bhagavad Gita is basically a song by God. So it's very melodious. Okay. So please try to hear very carefully. So this is not a very new science. Okay. This is from time immemorial. Means this is eternal. Uh, 1 minute. सो दिस इज एटर्नल नॉलेज। ये जो नॉलेज है ये सदियों से चला आ रहा है, इसे कभी किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, या इसे अपडेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। ये जैसे आज के हमारे साइंस हैं, जैसे डार्विन थ्योरी है। जैसे डार्विन थ्योरी को अपडेट करना पड़ा। हाँ, पहले साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो डार्विन थ्योरी है ये सही है, फिर बाद में बोला कि ये गलत है, तो ऐसे अपडेट करने पड़ते हैं मैथ्स के फॉर्मूलेज। हाँ, ऐसे न्यूक्लियर फॉर्मूलेज ये सब अपडेट होते हैं, लेकिन भगवत गीता एज इट इज रहती है। ओके। सो ये चेंज कभी नहीं होता है। वन। ओके। सो भगवत गीता को हमें अगर समझना है तो हमें वैसे ही इसे ट्रीट करना होगा, लाइक व्हाट अर्जुन हैज, हाउ अर्जुन हैज एक्सेप्टेड इट। ओके। सो सी हाउ अर्जुन इज डूइंग। अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग लॉर्ड कृष्णा टू प्लीज इम्पार्ट द नॉलेज विच कैन सॉल्व माई ऑल प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द मेन थीम and the spirit through which we should understand or we should take Bhagavad Gita. Now, next slide. So, how to understand Bhagavad Gita? Bhagavad Gita समझने के लिए it is the basic qualification that at least we should understand that Lord Krishna is not a personality like us. Okay, he is something greater than us, and not something. He is the greatest. He is the supreme personality of Godhead. Okay, how he is greatest? Because his birth, his activities are far superior than us. Uh, अगर आज मैं किसी को बोलूं कि वो वेट लिफ्टिंग करे तो ज्यादा से ज्यादा 250 किलो उठाएंगे, लेकिन लॉर्ड कृष्णा, ही हैज उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया है। लॉर्ड राम, उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया है। वो भी बहुत ही, आज के जैसे पुल्स बनते हैं उसमें महीनों सालों लगते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों में ही बना दिया, वो भी किन से? बंदरों से, बंदरों की सहायता से। तो ये कोई मामूली एक्टिविटीज नहीं है। उनके एक्टिविटीज, उनकी टीचिंग्स, उनके बर्थ, ये सब हमसे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के रहते हैं। आगे। ओके। सो ये, I shall see. सॉरी, तो मैंने जो अभी भी कहा है ये इधर उधर से नहीं कहा है, इसका रेफरेंस भगवत गीता में ही है। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 9। So in this verse, Lord Krishna tells that his appearance, his activities, and his living the body, and he is taking birth again. These are not just like common. These are not just like common. जैसे हम लोग करते हैं ये वैसे नहीं है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं वैसे भगवान भी स्कूल जाते हैं, लेकिन उनका अलग रहता है। हम लोग कई साल लगाते हैं, हाँ, इंजीनियरिंग करने में, लेकिन भगवान उस एक इंजीनियरिंग को एक दिन में सीख लेते हैं और रात को उसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ऐसे भगवान 64 कलाएं सीखते हैं। I shall see. सॉरी, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? लॉर्ड कृष्णा जो है पार्थ सारथी बन जाते हैं, वो अर्जुन के चैरियट को चलाते हैं। 1 मिनट। ओह, आई एम सॉरी। इसीलिए हम उन्हें बहुत ही कॉमन समझ लेते हैं, बिकॉज हिज एक्टिविटीज अपीयर्स टू बी कॉमन, दैट्स व्हाई वी कंसिडर हिम एज अ कॉमन पर्सन, बट ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट when we say Bhagwan, what we understand, what is the meaning of Bhagwan?
So Bhag means opulence and Van means who holds the opulence. Okay. So what are the opulences? So there are 6 opulences. What are they? Wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation. So these are 6 opulences. If these 6 opulences are in full amount in someone, then we can call him as a Bhagwan. Okay. So does Lord Krishna has all these opulences in him? Let's explore. So here is the beauty and here is the wealth. And 1 minute. Sorry. So knowledge, strength, fame, renunciation. So all these are 6 opulences. And who is Bhagwan? See, Krishna is very, very, very beautiful. And he has unlimited strength. And he has unlimited fame. He is famous in India also, in foreign also, even in Pakistan also. Knowledge, he is the topmost professor, we can say him. Okay, he is topmost professor. He can impart mm, geography, economics, spiritual science, archery, so many knowledge. And he has lots of wealth. You all know Lakshmi, what Lakshmi ji is doing. He is in Hindi we say it, she is doing Charan Samvahan of Lord Narayan. So Lakshmi is serving Lord Narayan. So all wealth belongs to whom? Lord Krishna only. Renunciation. See, renunciation means he is far superior than anyone. But what he is doing? He is doing a job of a driver. वो भी मर्सिडीज का नहीं, वो भी घोड़ों को हाँक रहे हैं. So he is showing his renunciation. Okay, next. So Lord Krishna has all these opulences. Now from scriptures I am telling you, okay. So this is from Bhagavatam. Bhagavatam says that Krishna stu Bhagwan Swayam, that Krishna is the Bhagwan. Now Bhagavad Gita also tells that Bhagavad Gita chapter 10 verse number 13 that Narad, Asit, Deval, Vyas all have accepted that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So you all know na, why I am telling this, because to understand Bhagavad Gita, we have to understand who is speaking Bhagavad Gita. Then we will understand what is the importance of Bhagavad Gita and why it is so important. Hey, please don't use marker. So Madhvacharya, a very great acharya from South India, you must know him. Ramanujacharya, if you went to, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो you will see big temples, very great temples of Lord Shiva, Lord Vishnu, and he is the only person behind all these temples. He preached the Vedic philosophy very deeply, बहुत ही डीपली इन्होंने एक्सप्लेन किया है और बहुत ही प्रीच किया है, और आप देखते हैं वहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है. ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु also have accepted. So all have confirmed that Krishna is the supreme person, and from that person we are taking the knowledge of Bhagavad Gita. Okay, थोड़ा टाइम कम है तो हम आगे बढ़ रहे हैं. So conclusion is that Krishna, although he appears in the form of a human being, but he is not a human being, common human being like us. Okay. If you have any problem, then please write in chat box. Okay, I'm continuously seeing chat box. So all the devtas, Indra, Chandra, Varun, even Brahmaji, Shivji, all are subordinate to Lord Krishna. He has all 6 opulences. Okay, and he protects his devotees always, just like in Govardhan Lila. And in कौन सा नाग था, कालियानाग, हाँ, कालियानाग, he protected all the Brajvasis the deadly poison of Kalyanag. And today also he is protecting his devotees. Don't think that अरे वो तो पुरानी बात थी. No. Okay. So we are beginning with chapter 1.
सो यू ऑल नो द स्टोरी, थोड़ा स्टोरी है तो मैं बता देता हूँ। तो भगवान कृष्ण सो रहे थे और जो अर्जुन थे, आप फोटो में देख सकते हैं, अर्जुन जो है उनके पैर के पास थे। और आप एक साइड में देख सकते हैं एक दुर्योधन है, वो उनके सर के पास थे। तो भगवान जैसे ही जगे, then he saw Arjun first. Then he asked, "Oh Arjun, you are here. What you want from me?" Then Duryodhan beside him said, "Oh, I came first. Why are you telling him to ask?" But Lord Krishna said, "Oh, I have seen him first, so I will ask him." So Duryodhan was in deep tension. Oh, what he will ask? But you know that Arjun is a devotee of Lord Krishna. So he asks, "My dear Krishna, I need nothing. I only need you. So I don't need your Narayani Sena." Then Duryodhan become very much happy. Oh, this is number one fool. Arjun is number one fool because he has left the Narayani Sena and he has taken Lord Krishna, who will not even lift a weapon against the army. Then what he will do? Okay. But Arjun was very, very intelligent. Why? Because he knew that all the six opulences belongs to Lord Krishna only. So if any problem came, then Lord Krishna will protect him. And you see, in the beginning of the battle of Kurukshetra, Arjun was willing not to fight. I will give up this fighting, just like Ashoka did. So I will give up this fighting. But Lord Krishna inspired him, uh, make him hear Bhagavad Gita, and then he started fighting and he won also. So next, 1 minute. So I am telling you little interesting thing that there are 18 chapters in Bhagavad Gita. Now the first 6 chapters are like an जैसे एक आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बॉक्स है। ओके, उस बॉक्स का एक ऊपर से लगाने वाला ढक्कन है और नीचे एक बॉक्स है और उसके अंदर पूरे ज्वेल्स भरे हुए हैं। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर लाइक द लोअर कवरिंग ऑफ द बॉक्स एंड द लास्ट 6 चैप्टर्स आर लाइक द लिड ऑफ दिस बॉक्स। एंड व्हाट इज द मोस्ट important thing, the middle 6 chapters in this Bhagavad Gita are the most excellent shining jewels inside the box. So actually we are starting from the first 6 chapters, so don't worry. One more thing I want to tell you that Bhagavad Gita takes patience. Okay, it takes patience to understand. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े एग्जाम के पहले और एग्जाम में लिख के आ गए, जैसे कॉलेज में होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे इसमें नॉलेज, हाँ, और ब्लिस, ये सब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फर्स्ट चैप्टर्स आर लिटिल बोरिंग। ओके, आई एम टेलिंग यू, मैंने भी करीब 6-7 बार भगवत गीता पढ़ लिया है। So first chapters 1, 2, 3, 4, I think so. These are little boring, but these are the basis for next chapters. Okay, so we have to take knowledge from these chapters, then we will understand the rest of the chapters. Now, so you can see there are various scientists, great personalities who have already glorified Bhagavad Gita. So we cannot say that Bhagavad Gita is an old book and we don't need Bhagavad Gita today. Okay, today also Bhagavad Gita is very, very relevant. You have heard, I think so, Dr. Vivek Bindra, Sandeep Maheshwari, they often quote from Bhagavad Gita. Very big motivational speakers, cricketers, and many business coach, they preach from Bhagavad Gita. They took lessons from Bhagavad Gita and teach to the public. So Bhagavad Gita is still very, very relevant. But we don't know which part of the Bhagavad Gita will help us which phase of our life. So we will learn whole Bhagavad Gita and we will try to apply this in our life. So मैं इसे जल्दी जल्दी करूंगा. So Shankaracharya ji has written Gita Mahatma and he tells that
everyone should read Bhagavad Gita, and this is very, very useful for this life also and for next life also. Second, see in the black photo, if you are young, then to learn how to live, you should read Bhagavad Gita. If you are an old, then to know how to die, you should learn Bhagavad Gita. If you are a learned, okay, you already have knowledge. But for humility, you should learn Bhagavad Gita. And if you are rich, then for compassion, you should learn Bhagavad Gita. So for everyone, Bhagavad Gita is a type of manual. Suppose we buy some iPhone or some washing machine. Today, washing machine is very complicated. So suppose we buy an automatic washing machine with AI. Now it's very difficult to run. But if we have a manual, then it's very easy to learn how to run the washing machine. So, we are having a human body, and to run this human body very nicely and live a happy life, we need Bhagavad Gita. So, for every type of life, at any phase, at any stage, Bhagavad Gita will give you valuable wisdoms. Definitely, he will give you. But when you are in problem, then you should read Bhagavad Gita. Okay. Now you will ask which portion I should read Bhagavad Gita. So I have already told you that between 6 chapters are the most valuable. So you can read between 6 chapters. But after completing this course, okay, if you just jump to the between 6 chapters, then you will understand nothing. But if you understand from this course, then you can understand the whole Bhagavad Gita. At least basics and a little medium. For advanced, you have to read Bhagavad Gita as it is. I have no option for that. Okay. So Gita Mahatma. So Shankaracharya is saying that if you have Bhagavad Gita, then one need not read any other Vedic literatures. There are so many Vedic literatures, and this literature is saying that, this literature is saying that. Yes, it is very much confusing. बहुत ज़्यादा confusion है. लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम इसे सीखते हैं, तो हमारा confusion जो है वो एक बार में साफ हो जाता है. आओ आगे देखते हैं. आप लोग देखे होंगे कई लोग जैसे कुंभ होता है तो गंगा स्नान करने जाते हैं. They go for Ganga bathing in Ganges. But from where Ganges came? It came from the lotus feet of Lord Narayan. And from where Bhagavad Gita came? It come from the mouth of Lord Narayan or Lord Vishnu. Okay. So which is more valuable? Mouth or foot? Obviously, mouth is more valuable. So if you bath in Ganges, it is very nice, but it is more valuable, more इंटरेस्टिंग एंड ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को रोज हम पढ़ते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं. वो हम आगे सेशंस में सीखेंगे. ये फर्स्ट सेशन है, ये केवल बेसिक्स में ही रहेगा. ओके. हाँ, सारे सेशंस मैं नहीं लेने वाला हूँ. मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के लिए, जो कि उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं. शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कह देते हैं भगवत गीता के ग्लोरीज के लिए कि कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम. केवल एक ही शास्त्र होना चाहिए. कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, यानी कि भगवत गीता होना चाहिए. केवल एक ही कहते हैं शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कह देते हैं. अब हम भगवत गीता के फर्स्ट. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन कि क्विज कब कंडक्ट होगा. तो क्विज का ऐसा है कि yes, this is first session, and before the second session, before 15 minutes before second session, we will post the link of the quiz in the group, and you can give the quiz for 15 minutes only, and then the second session will start. So in short, I can say that tomorrow you will have the quiz for this session, this first session. Okay, so this is our first shlok.
So first, I already told you that there are four. I will give you the PPT only. Okay, I will give you the PDF after this. But I have to ask to the authority also. After asking, I can give you. So Dhritarashtra said the first verse of the Bhagavad Gita. Okay, and there are four persons who have said Dhritarashtra, Sanjay, Arjun, and Lord Krishna. So Dhritarashtra asked Sanjay, all have assembled in the battlefield. Now what they are doing? Okay, so he is asking, he is doubtful. अरे वो लोग लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? And he is fearful also कि कौन जीतने वाला है. And he is hopeful also that हम जीतेंगे कि नहीं. Means हमारे जो दुर्योधन जो और जो बाकी 99 हैं फैमिली वो जीतेंगे कि नहीं. He is asking. Okay, next. जैसे ही ये सब स्टार्ट होता है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है, ये ऐसे ही चलता है. हाँ, इसमें ज्यादा टीचिंग्स एकदम से नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही चलता है. तो दुर्योधन जो है कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन दुर्योधन क्या करते हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास भीष्म पितामह है. देखो अभी बोलेंगे भी. हमारे पास भीष्म है. नहीं, पहले वो बताते हैं कि अपोजिट साइड में कौन है. अपोजिट साइड में भीम है, अर्जुन है. हाँ, ये है. और हमारे साइड में कौन है, हमारे साइड में भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है. इतने बड़े बड़े लोग हैं. सो दिस शोज कोई इतनी बात क्यों करता है. हाँ, ऐसे तो ये क्षत्रियों का काम था कि वो जनरल्स थे तो उनको दुश्मन का आकलन करना चाहिए. हाँ, उनको एस्टिमेट करना चाहिए कि कौन कौन है अपोजिट साइड में. लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं. हाँ, फिर भी वो द्रोणाचार्य को ना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप सब मिल के काम करिएगा. हाँ, ही इज टेलिंग दैट सी ऑल्दो इन द अपोजिट साइड वी हैव अर्जुना एंड वी हैव भीष्म, sorry, Bhim. But if we will work together, then we can win them. There is no doubt in this. So he is telling like that. Okay. So next. So from verse number 12 verse number 19 केवल इतना होता है कि शंख बजाते हैं, सारे जो वॉरियर्स रहते हैं वो शंख बजाते हैं. तो ये सब उनके शंख के नाम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक का बस नाम याद कर लेते हैं, कृष्ण पंचजन्य. वो उसको जन्य ही पढ़ते हैं. तो भगवान कृष्ण जो है पंचजन्य शंख बजाते हैं. सी पहले के बैटल्स भी इतने ज्यादा अच्छे होते थे कि वो लोग भी एक रूल्स को फॉलो करते थे. हाँ, कि वो लोग थोड़े दूर में लड़ाई करेंगे जहां पर जनरल पब्लिक रहती है, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो जनरल पब्लिक को. रात को वो लोग लड़ते नहीं थे. और बराबरी की लड़ाई होती थी. अगर किसी का धनुष गिर गया है तो उनको देते थे ऑफर, हाँ, कि आप धनुष उठाइए फिर हम लड़ेंगे. ऐसे बैटल होता था. हाँ, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड धर्म युद्ध. क्योंकि ये आज धर्म से होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आज अधर्म युद्ध होता है. सो यू सी those who are fighting in the battle of Kurukshetra, they are very learned personalities. They all follow dharma very nicely. चाहे वो कितने भी बुरे से बुरे हों, लेकिन सब के सब धर्म को अच्छे से फॉलो करते हैं. सो भगवत गीता इज स्पोकन इन अ प्लेस वेयर ऑल द पीपल्स आर वेरी लर्नेड, वेरी दे हैव ग्रेट वैल्यूज. ओके, ये आजकल की तरह नहीं है. नेक्स्ट. सो अब अर्जुन की बारी आती है. तो देखिए अभी हम 20th वर्ष में पहुंच चुके हैं. सो अर्जुन, अभी दुर्योधन ने तो अपना कर लिया, अब अर्जुन की बारी है. तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, ओ इनफॉलेबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज. अब आप मेरा जो रथ है वो दोनों आर्मियों के बीच में लेके जाइए. तो अर्जुन भी देखना चाहते थे कि हमारे अपोजिट में कौन कौन लड़ने आए हैं. तो अर्जुन सबका चेहरा देखने चाहते थे, लेकिन वहां जब अर्जुन पहुंचे तो इन्हीं का चेहरा देखने लायक हो गया. अर्जुन ही हिल गए.
पूरा अपने भाषा में बोले तो हिल गए। ऐसा क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। ओके, सो अर्जुन बिकम ओवरवेल्म्ड। sorry, why he become overwhelmed? So there are various verses in which Arjun told Krishna that I cannot fight due to these reasons. Okay, I cannot fight due to these reasons. So 1 minute. ओके, हम इसको आगे कवर करेंगे, फिर हम बैक करके देखेंगे। पहला वो, हे डोंट यूज मार्कर। हाँ, तो पहला रीजन अर्जुन देते हैं कि सी आई हैव नो डिजायर फॉर किंगडम। ओके, आई डोंट वांट एनी किंगडम। वो भी कब, जब हम अपने ही फैमिली मेंबर्स को किल करके हम कुछ प्रॉपर्टी गेन करते हैं। मुझे, आई डोंट वांट दिस। ओके, अर्जुन इज टेलिंग दिस। सो व्हाट दिस शोज, दैट ही इज नॉट ग्रेडी। He is not greedy, although he has come to fight, but he is not greedy. Next, 1 minute. In 36th verse, he says that, see, if I will kill my elder persons, then this will be a sin. अगर मैं अपने बड़ों का जैसे अनादर भी कर देते हैं तो उसको बुरा माना जाता है। तो हम तो यहाँ पर अर्जुन तो डायरेक्ट अपने बड़ों को, जैसे भीष्म पितामह, हाँ, उनको तो मारने ही आए हैं। तो ये तो उनको बहुत पाप चढ़ाएगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं आई कैन नॉट डू दिस, नो नो नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आज के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। सो इसमें फोर्थ रीजन अर्जुन दे रहे हैं कि अगर मैंने एल्डर पर्सन्स को मार दिया, मान लो, तो इससे क्या होगा कि फैमिली के जो लर्नेड पर्सनालिटीज हैं वो डेथ, उनकी डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि फैमिली का जो डायनेस्टी है, हाँ, जो हमारा जो मेन जो रेगुलेशंस करते हैं, जो टॉप मोस्ट जो पर्सनालिटीज लोग, हाँ, वो, उनकी डेथ हो जाएगी। तो रेगुलेशन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इससे फैमिली ट्रेडिशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप हो जाएगा तो धर्म के नाम पर कोई कुछ भी करने लगेगा, और इससे क्या होगा? इररिलीजन इंक्रीज होगा। जब किसी धर्म के जो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं, या तो वो करप्ट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, हाँ, और वैसा कोई वैल्यूएबल पर्सन नहीं रहता है, तो क्या होता है? इससे इससे इररिलीजन फैलता है, और आज पूरे वर्ल्ड में इररिलीजन ही फैला है एक टाइप से। इससे क्या होता है? इससे वुमेन्स बिकम्स पॉल्यूटेड। जब भी क्राइम बढ़ता है, जब भी कुछ भी ऐसा गलत होना स्टार्ट होता है, तो एकदम मेन टारगेट वुमेन्स में रहता है जनरली। और इससे क्या होगा? अनवांटेड प्रोजनी बाय मिक्सचर ऑफ कास्ट। इससे क्या होगा कि अनवांटेड चिल्ड्रंस प्रोड्यूस होंगे, और फिर उनका तो केयर कोई करेगा नहीं, तो वो बड़े होके क्या करेंगे? केवल सोसाइटी में डिस्टरबेंस ही पैदा करेंगे। अमेरिका में ऐसा ही होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा होते हैं कि वहां पर तो हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हाँ, कि 7 जन्म का बंधन है, वैसा वाला तो कुछ है नहीं। वहां तो 7 दिन का बंधन रहता है। हाँ, तो वहां तो बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं। वैसे इंडिया में भी डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो वहां बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं। अब डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन अब जो चाइल्ड है उसका कौन केयर करेगा? कोई नहीं। तो वो तो ऐसे ही बड़े होते हैं, और फिर सोसाइटी में केवल वो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। क्योंकि बचपन से उनको कोई करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता है ना। इसीलिए फैमिली के जो एल्डर पर्सन्स हैं, हाँ, उनका ये ड्यूटी रहता है कि वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को बनाए और उसको चला कर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी कल्चर का एक एस्पेक्ट है, जो कि अर्जुन बता रहे हैं कि अगर मैंने युद्ध कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, और इंडियन सोसाइटी में इसके बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो हम देख भी रहे हैं। जैसे कि अबॉर्शन बढ़ते हैं, डाइवोर्स बढ़ते हैं, और बहुत कुछ इसके कारण बढ़ते हैं, डाउरी, बहुत कुछ है। लेकिन भगवत गीता
इसको बस यहाँ पर स्टार्टिंग में बता रही है कि ऐसा हो सकता है। ओके, भगवत गीता इससे ज्यादा कुछ है, आगे हम पढ़ते हैं। 1 मिनट। ओके, अब संजय कह रहे हैं चैप्टर 1 खत्म होने वाला है। क्वालिफिकेशन फॉर एनलाइटनमेंट। तो कौन, अभी तो हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी तो हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अर्जुन ने गिनाए हैं। ओके, लेकिन अब उनको नॉलेज लेना है, अब उनको सॉल्यूशन लेना है। तो एक जो अभी हमने अर्जुन के कुछ कुछ क्वालिटीज भी देखे हैं। देखो, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स गिनाए हैं और हमने उनके कुछ कुछ क्वालिटीज देखे हैं। फर्स्ट, वो ग्रीडी नहीं है, वो ग्रीड के कारण नहीं कर रहे हैं। सेकंड, वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। थर्ड, हाँ, कि वो अपने फैमिली रिलीजन को भी बचाना चाहते हैं, फैमिली कल्चर को भी बचाना चाहते हैं। वो अपना राज प्राप्ति के लिए, हाँ, अर्जुन जो है वो सोसाइटी को तबाह नहीं करना चाहते। जैसे कि आज हो जाता है, आजकल पॉलिटिक्स में यही होता है कि बस हम किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से जीत जाएं, चाहे हम कैसा भी प्रकार का स्कीम चला दें, लोगों में कैसा भी बेकार चीज कर दें, रिजर्वेशन उनको बहुत ज्यादा थोप दें या बहुत ज्यादा उनको उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दें, ऐसा किया जाता है। लेकिन अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर सॉफ्ट हार्टेडनेस है, काइंड है। तो ऐसा पर्सन नॉलेज ले सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो भी अगर वो भगवत गीता को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं तो उनमें ये क्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट। Okay, so thank you very much for attending the first chapter. Now we are starting the second chapter, and we have 30 minutes. Please wait. मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। One minute. Okay, this is the file. So we are beginning with chapter 2, and we will try to cover it in time. In case you have any questions, then you can comment, okay, in the chat box. अभी हमने इस वर्स को देखा है। यह है चैप्टर 1 का लास्ट वर्स 1.46। चैप्टर 1 में 46 श्लोक है और चैप्टर 2 में आई थिंक 75 के अराउंड श्लोक है। सो सी इन प्रीवियस चैप्टर 1 में अर्जुन जो है अपने प्रॉब्लम्स गिना चुके हैं। चैप्टर 1 में भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोला है, अभी तक भगवान चालू नहीं किए हैं बोलना। और अभी तक संजय और धृतराष्ट्र बोल चुके हैं, 3 लोग अभी तक बोल चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने केवल प्रॉब्लम्स सुने हैं, अभी तक हमने कोई सॉल्यूशन नहीं सुना है। तो अब हम सॉल्यूशंस को सुनने वाले हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर 2 है, इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। ये प्रभुपाद जी ने नाम दिया है इसको, क्योंकि इसमें ना भगवान पूरी गीता को इस चैप्टर 2 में एक समराइज वे में कहते हैं। ओके, लेकिन फिर अर्जुन को समझ नहीं आता है तो वो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में फिर से पूछते हैं, और फिर से चैप्टर 3 से पूरा 18 फिर भगवान इसी चैप्टर 2 को एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 2। सो इसके लिए हम 4 कीवर्ड्स को अच्छे से देख रहे हैं। इसका नाम है GITA। अगर हम इन 4 वर्ड्स को अच्छे से याद रखेंगे तो हम इस चैप्टर को लगभग लगभग याद रखते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट इज गुरु। गुरु
मीन्स एब्सोल्यूट नीड फॉर स्पिरिचुअल गाइड। तो आगे देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि भगवान जो है अर्जुन को चैस्टाइज करते हैं, मतलब डांटते हैं। कि माय डियर अर्जुन, हाउ दिस इम्प्योरिटीज हैव कम अपॉन यू। हम्म आप तो बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, गांडीवधारी हैं। आप तो मछली की वो आंख में भी तीर लगा देते हैं। और द्रोणाचार्य आपको बोले थे, हाँ, कि वो दूर में चिड़िया है उसकी आंख में निशाना लगाओ, और आप वो भी कर लिए थे। लेकिन आज आप ये सब बहाने दे रहे हैं। और आप देख लीजिए, अर्जुन का एक भी बहाना गलत नहीं था। अर्जुन के सारे बहाने सही थे। उन्होंने जो भी रीजंस गिनाए वो सब के सब सही थे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अभी बहाने दे रहे हैं कि मैं ये काम नहीं। ऐसे ही हम लोग भी बहाने देते हैं। ये हमारी ही बात चल रही है, भगवान हमें ही डांट रहे हैं कि ऐसे बहाने मत मारा करो। कि ये हो गया वो हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया। हम्म सो गिव अप सच पिटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज ओ चेस्टायर ऑफ एनिमी। मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ कि एक क्षत्रिय की क्या ड्यूटी होती है, हाँ, कि भगवान उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्षत्रिय का ड्यूटी रहता है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, हाँ। वो वायलेंस और नॉन वायलेंस दोनों का सहारा लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जो बुरे किंग्स हैं वो उनको किल करते हैं, रूल करते हैं एक टाइप से। सो दिस ये बेसिक चीज होता है क्षत्रियो का। मतलब क्षत्रियों का अगर मैं एक कॉमन सेंस में बताऊं तो वो लोग पीछे हटने वाला काम नहीं कर सकते। उनको आगे बढ़ना है, ओके। उनको वो पीछे हटने वाला काम नहीं कर सकते। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे थे। अभी अर्जुन ना 2-3 क्वेश्चन और पूछते हैं। हम्म कि बोल रहे हैं अर्जुन कि द्रोणाचार्य और जो जैसे भीष्म पितामह है, तो द्रोणाचार्य तो उनके टीचर हैं। तो हाउ कैन आई किल माई टीचर, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और फिर अर्जुन बोलते हैं बेटर टू लिव बाय बेगिंग। आई कैन लिव बाय बेगिंग बट आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट किल दीज ग्रेट सोल्स, दे आर वेरी ग्रेट। ओके, आई डोंट नो विच इज बेटर। अब अर्जुन पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई फाइट और रन फ्रॉम दिस प्लेस। अर्जुन इज आस्किंग टू लॉर्ड कृष्ण। नाउ लॉर्ड कृष्ण विल से, हम्म ओके, नेक्स्ट। Okay, one thing is important here, that what Arjun is doing, he is approaching a guru, and Lord Krishna is guru for all. Okay, he's a spiritual master. He's a teacher for everyone, not for only Arjun or for some generally Hindus. All Hindus, only Vaishnav. No, no, no. He is teacher for Hindu, Muslim, Christian. He is teacher for whole humanity. So Arjun is approaching a guru. Who is his guru? He is the best guru of whole world, known as Lord Krishna. So this is the right way to get the knowledge. We should not find मतलब हमें ऐसे गूगल सर्च नहीं करना चाहिए या यूट्यूब में जाके कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए। जब हमें कुछ नॉलेज लेना है तो हमें उस फील्ड के जो परफेक्ट जो प्रोफेसर हैं एक टाइप से, हाँ, उनसे पूछना चाहिए। तो भगवान तो सारे ही फील्ड के प्रोफेसर हैं, तो इसलिए अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दैट भगवत गीता में भी आपको लगभग लगभग अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन के लगभग लगभग प्रॉब्लम्स हमारे माइंड से रिलेटेड रहते हैं। ओके, और भगवत गीता में इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो 3rd और 4th चैप्टर में है। अभी हम उसका बस बेसिक्स यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट, सिंपल। ओके, सो टुडे our modern youth is busy in these things, and they are completely frustrated after enjoying in this way also. Okay, you can see this. आज जनरली लोग एडिक्टेड रहते हैं इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप स्टेटस से,
और भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली आज लोग एडिक्टेड ही रहते हैं, मोस्टली मोस्टली एडिक्टेड रहते हैं किसी ना किसी चीज से। और ये एडिक्शन क्या है, ये एक माइंड की एक डिजीज है असल में। और इसका डिजीज का सॉल्यूशन क्या रहता है? इसका डिजीज का सॉल्यूशन कोई गोली या कोई इंजेक्शंस ये सब से नहीं हो पाते हैं। हम जितना ज्यादा इन चीजों को कंज्यूम करते हैं उतना हमारा माइंड पॉल्यूट होते जाता है। अब उस माइंड को प्यूरिफाई करना है, तो अब उसको प्यूरिफाई कैसे करना है हम आगे के वर्सेस में उसको देखते हैं। सो बिफोर प्यूरिफाइंग ये तो जानना पड़ेगा कि हम प्यूरिफाई कर किसको रहे हैं। हम्म और हम उसको प्यूरिफाई करेंगे कैसे? सो हु आर यू? लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हु आर वी। सो हु आर यू? सो ही इज डॉक्टर हेनरी मॉन्सन। सो 1 मिनट। सो इन्होंने रिसर्च किया है और इन्होंने खोजा है कि हमारे जो बॉडी है, हम्म, हमारा जो बॉडी रहता है उसमें दिस केमिकल्स compose of our body, 5 bonds of chemicals, and these all these chemicals. But one more thing, then the cost of our body will be only 110 rupees. थोड़ी महंगाई बढ़ गई तो 120 rupees. But we are different from these things which we look from outside. So what is our real identity? So she is living beauty, but after death, all the beauty gone. I don't know where gone, but all the beauty gone. The luster from the face, the beauty from the lips, eyes, all everything gone. The desires, thinking, movement, consciousness मतलब कि जैसे अगर हमें कोई चींटी काटती है तो हमें वो महसूस होता है कि हाँ हमें चींटी काटी है। अगर आप एक डेड पर्सन को कुछ चिमटी काटोगे, हाँ, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारे में कॉन्शियसनेस है। हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारे में डिजायर्स है, थिंकिंग है, हम फील भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन केमिकल्स ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में डिजायर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बेंजीन रिंग थिंक भी नहीं कर सकता है, ना फील करता है। मूवमेंट शायद दूसरे के कारण कर ले, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस भी नहीं होती है बेंजीन रिंग में। लेकिन हमारे अंदर है, और हमारे अंदर वो सारे केमिकल्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर उस केमिकल से एक्स्ट्रा भी कुछ है, जो जिसके कारण हम फील कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग, वी हैव डिजायर्स, मूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज कॉल्ड सोल। सोल मीन्स आत्मा। हिंदी में आत्मा बोलते हैं, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। और सोल का कॉन्सेप्ट केवल हमारे में ही नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड many religions have the concept of soul, and it's a scientific concept. Okay, I will prove from science also that the soul exists. Wait for some minutes. Okay. So we are not this body. You can see from this picture that there is a person, white body. You can see he is driving, and this body is seeing his face and thinking, "Oh, I am this person." But actually, from inside, some other person is driving the body, and thinking, "Oh, I looks like this." But actually, some other person is driving the body, and he is the original person, and next to him is God also. So, what is the scientific proof of the existence of soul? So, from common sense, we will explain. मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा, ओके? सो ध्यान से देखिएगा। सो फ्रॉम कॉमन सेंस, जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं, ओह, शी इज गॉन। सो बट शी इज लाइंग देयर ओनली। वो तो अभी भी वहीं पर लेटी है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि अब वो जा चुकी हैं। तो कौन गया है? सोल गया है उनकी बॉडी से, इसीलिए बस अब उनका शरीर रह गया है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, सी जब एक वीडियो कैमरा, हाँ, अगर हम एक वीडियो कैमरा को एक स्नेक का वीडियो उतरवाएं तो उसको डर नहीं लगेगा, उसको कोई फीलिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने आईज से उतने ही नजदीक में एक स्नेक को देख लें, या एक बहुत ही सुंदर
सनराइज को देख ले तो हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो कैमरा इसे फील नहीं कर सकता है। तो हमारे में और उस वीडियो कैमरा में कुछ तो अंतर है, तो वो क्या है, वो सोल का अंतर है। उस वीडियो कैमरा के अंदर सोल नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, ये इंडिया में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं और देखिए आप पढ़ सकते हैं, एमो एमओआरजी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं फॉरेन फॉरेन लोगों से भी, कि कई बार ऐसा होता है उनका ऑपरेशन होते रहता है और वो अपने शरीर से बाहर निकल के उस ऑपरेशन को देखते रहते हैं, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो वापस अपने शरीर में चले जाते हैं। तो ये बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस रहता है, सबको नहीं होता, बहुत कम लोग होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो बाहर निकल के देखे वो क्या था, क्योंकि उनका बॉडी तो वही है, हाँ, उनके सारे केमिकल्स तो वही हैं। तो जो बॉडी के बाहर निकल के जो पर्सन ने उस बॉडी को पूरा ऑब्जर्व किया, व्हाट वाज दैट, तो दैट वाज द सटल बॉडी विच कंटेन्स द सोल। सटल बॉडी क्या होता है हम भगवत में वो भी आगे पढ़ेंगे, ओके। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि वो एक सटल बॉडी है जो कि हमारे ही बॉडी जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर सोल रहता है। नेक्स्ट, एंड देयर आर मेनी मेनी बुक्स, कोई पढ़ने मत लग जाना, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी ओ 1 मिनट, ओके। ही इज डॉक्टर आयन स्टीवनसन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। सो इन्होंने 2000 केसेस को स्टडी किया है, वो भी री इनकारनेशन मेमोरीज को लेकर। आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, और इन्होंने बहुत सारे बुक्स को भी लिखा है। हाँ, एक स्टोरी हम डील भी करेंगे। री इनकारनेशन होते हैं इसका, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ्स भी दिया है। जैसे फोबिया होता है, कई लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, कई लोगों को नाइफ, कुकिंग करते हैं ना तो नाइफ से उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उनकी जो पास्ट लाइफ में जो डेथ हुई रहती है ना उसी से कुछ रिलेटेड रहती है, इसलिए उनको इससे बहुत डर लगता है, ओके। थोड़ा फास्ट, हाँ। तो ये एक स्टोरी है डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने ही केस स्टडी किया है, शुक्ला गुप्ता, ये इंडिया के हैं, ओके। तो ये स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो ये जो चाइल्ड है, ये लड़की चाइल्ड, ये एक गांव में रहती थी, और ये ना बार बार ना अपने गांव का नाम बताती थी कि मैं वहां रहती हूँ, मैं वहां रहती हूँ, मैं वहां रहती हूँ, हाँ मेरा वहाँ फैमिली है, मुझे आप वहां लेके चलिए। तो सब लोग सोचते थे अरे ये तो बहुत छोटी है, छोटी है, ये ऐसी बोलती होगी, कुछ कहीं से सुन ली होगी। लेकिन एक दिन ना उसके फैमिली में एक पर्सन जो थे वो कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वैसे ही गांव के बारे में सुना जैसे उसने बताया था। तो उनके अंदर जिज्ञासा आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो ना उस लड़की को लेके गए। और क्या हुआ, तो उसने ना उस गांव में गई और कोई भी रॉन्ग पैथ उन्होंने नहीं अपनाया, सारे राइट पैथ अपनाए, और डायरेक्ट अपने घर में चले गई। और घर में जाके एक एक पर्सन को आइडेंटिफाई भी कर ली कि ये इनसे मेरा ये रिलेशन है, इनसे मेरा ये रिलेशन है। तो वो सबको आइडेंटिफाई कर ली। इसका मतलब ये एक उन्होंने केस स्टडी किया है कि इस चाइल्ड का रीबर्थ हुआ था दूसरे फैमिली में, दूर में ही कहीं। अब साइंस का साथ प्रॉब्लम यह है कि साइंस इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ ऐसा केसेस बहुत सारे हैं और ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी का डेथ हो जाता है और फिर से उसकी जो मेमोरीज है दूसरे पर्सन में आ जाती है। तो मतलब कुछ तो एक बीच में कोई कनेक्शन है जो कि एक पर्सन से उसकी सारी मेमोरीज और बहुत सारे क्वालिटीज को लेके दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है, ऐसा कुछ तो है। तो उसी को बोलते हैं सटल बॉडी जिसके अंदर सोल रहता है, ऐसा भगवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता के पास तो इसका आंसर है, अभी तक साइंस इसका आंसर खोज ही रहा है, ओके। नेक्स्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को एक्सेप्ट किया है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, सोक्रेट्स, ये फिलोसोफर है, बहुत फेमस फिलोसोफर है, और इन सब ने ही एक्सेप्ट किया है, हाँ। इवन आइंस्टाइन ने भी एक्सेप्ट किया है। तो अभी तक तो हम
1 मिनट। अभी तक हम सोल को प्रूफ कर रहे थे कि सोल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम, जैसे हम सोल हैं तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके वर्क क्या क्या हैं। तो 1 मिनट। ये ठीक है। सो दिस इज अ श्लोक फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। देखो अभी मैं सोल को बस बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं बताऊंगा। ओके, सो वेट फॉर दैट टाइम। सो चेंज ऑफ बॉडी इज एन इटर्नल, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. जैसे कि एक आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटा जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हाँ, फिर उसके बाद वो फिर ओल्ड होता है। ये पूरा एक साइकिल है, पूरा पिक्चर नहीं है इसमें। तो ऐसे ही जैसे एक बच्चा जो है छोटे से बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर डेथ हो जाता है, तो उसका बॉडी जो है चेंज हो रहा है, लेकिन वो पर्सन तो वही है। उसका बॉडी चेंज हो रहा है लेकिन पर्सन तो वही है। सिमिलरली डेथ के बाद भी बॉडी चेंज होता है लेकिन पर्सन वही रहता है। लेकिन अधिकतर केसेस में मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, अधिकतर केसेस में मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। कुछ केसेस में ही, बहुत रेयर रहते हैं केसेस जिसमें पास्ट लाइफ की मेमोरी लॉस नहीं होती है, बहुत रेयर रहते हैं ये केसेस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर ओल्ड होता है, फिर डेथ होता है। उसकी पूरी लाइफ में बॉडी बदली है और इसमें 6 हुए हैं: बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर प्रोडक्शन और बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि फैमिली एक्सपैंड किए उनके बच्चे, फिर ड्विंडलिंग एंड फिर डेथ। ये 6 चेंजेस सबकी बॉडी में होते हैं। और फिर यही साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है। नेक्स्ट, सोल देखो चल भी रहा है। सो बॉडी जो है वो मैटर है, लेकिन सोल वो पूरा स्पिरिट रहता है। मैटर यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, ये सब मैटर है, लेकिन स्पिरिट एक पूरा अलग चीज है, वो स्पिरिट है। बॉडी जो रहता है वो कॉन्शियस नहीं रहता है। जैसे सोल जैसे ही शरीर से निकला, अब बॉडी कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन सोल कॉन्शियस रहता है। सोल के अंदर कॉन्शियसनेस रहता है। जब तक सोल बॉडी में है तब तक ये हर एक चीज महसूस कर सकता है। बॉडी में चेंजेस होते हैं, सोल एटर्नल रहता है, नो चेंज रहता है। बॉडी जो है टेम्पररी रहता है, डीके हो जाता है, लेकिन सोल एटर्नल है। बॉडी डेड होता है लेकिन ये अलाइव रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। सोल कभी नहीं सोता है, जब हम सोते हैं तब भी नहीं सोता है। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल। हाँ, यहाँ पर मैं सोल का बेनिफिट्स बताऊंगा। सो वी आर, बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, वी आर नो मोर देन केमिकल बंडल्स। ये हमारा, ये मटेरियल व्यू पॉइंट है जब तक आप लोग सोल को नहीं जाने थे। जैसे कि गाय है, स्नेक है, ईगल है, तो हम सब डिफरेंट है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम, ये बॉडी ही नहीं है केवल, हम इससे कुछ ज्यादा है। हम क्या है, हमारे अंदर सोल है। हाँ, और यही हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, यही हमारा रियल आधार कार्ड है। तो अब आप देखो, जब हम अपने आप को सोल के लेवल पर देखते हैं तो हम किसी में कोई भेद नहीं करते कि ये गोरा है, ये काला है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये वेस्ट इंडीज से है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, अरे ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। हाँ, या ये फिर हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हम ऐसा कोई भेद नहीं कर सकते, क्योंकि सोल का ये सब से कोई रिलेशन नहीं होता है। सोल इससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति सोल की अंडरस्टैंडिंग से लाइफ जीता है तो वो इन सब जो मटेरियल व्यू पॉइंट्स है इससे ऊपर उठ जाता है। तो भगवत गीता का जो स्टार्टिंग ही है वो ये है कि हम अपने जो व्यू पॉइंट है इसको हम सोल के लेवल पर रखें। जब जैसे कि कई लोग एनिमल किलिंग कर देते हैं, हम्म, तो एनिमल किलिंग करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर भी सोल रहता है। सोल यानी कि आप बोल सकते हो सन ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब सोल यानी कि भगवान का ही एक चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, चाइल्ड है। और हम भी भगवान के एक चाइल्ड है, तो हम भी भगवान के एक चाइल्ड है और वो भी भगवान का एक चाइल्ड है, तो हम लोग एक टाइप से कनेक्टेड ही है ना। तो हम कैसे उसको किल कर सकते हैं, हम कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब सोल से होता है, और भी सोल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी रियल वाला हम जानेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बताया। नेक्स्ट, ओके। जैसे कि एक कार है, कार में हॉर्न रहता है, वैसे ही हमारे माउथ से आवाज निकलती है।
कार में हेडलाइट्स रहते हैं, हमारे आंखों से हम देख पाते हैं। कार में रेडिएटर रहता है, हाँ, वाटर सप्लाई होता है, 4 व्हील्स रहते हैं, हमारे भी 2 पैर रहते हैं। तो हमारी बॉडी जो है ये पूरी एक कार टाइप ही है। लेकिन कार के अंदर ड्राइवर नहीं होगा तो बॉडी मतलब कार नहीं चलती है। वैसे ही अगर बॉडी के अंदर सोल नहीं होता है तो बॉडी भी नहीं चलती है। नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि आप ये इनको देख सकते हैं, ओल्ड लेडी। So she is painting a cage in which a parrot is dying because she has not fed the parrot. Uh, she has not given any food to the parrot, but she is painting the cage with a golden paint. Okay, so what is happening? So Bhagavad Gita says that this is not a person of, this is not a sign of an intelligent person. Okay, because she is painting the cage, but she is not taking care of the parrot, which is an important entity in the cage. Similarly, in our body, we are having soul. So, if we are taking care of this body with all types of lotions, all types of face wash, and feeding it with valuable बहुत अच्छे अच्छे चीज से खिलाते हैं इस बॉडी को, लेकिन अगर हम सोल का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होगा, हमारा जो सोल है वो वीक होते जाएगा। हालांकि सोल वीक नहीं होता है, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसके जो क्वालिटीज है जो वो एग्जिबिट करता है, वो क्वालिटीज कमजोर होते जाती है। और मटेरियल जो बैड क्वालिटीज है वो इंक्रीज होते जाती है। सोल की सारी क्वालिटीज बहुत ही गुड क्वालिटीज है, बहुत ही वैल्यूएबल क्वालिटीज है, जैसे कि हम महात्मा गांधी जी में देखते हैं, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज में देखते हैं। तो उनके जो क्वालिटीज है, सोल की क्वालिटीज, वो बहुत हाई रहती है। मतलब सारी सोल की क्वालिटीज एक ही रहती है, लेकिन वो एग्जिबिट नहीं कर पाते। हम एग्जिबिट नहीं कर पाते हमारे अंदर वैसी क्वालिटीज, क्योंकि हमने सोल को कभी अच्छे से फीड ही नहीं किया, हम बस अपने बॉडी को फीड करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा फास्ट। भगवान ये भी बोलते हैं कि फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ। अर्जुन इसीलिए तो रो रहे थे ना कि हम, अगर मैंने अपोजिट पार्टी वालों को मार दिया तो मुझे तो बहुत पाप हो जाएगा। तो भगवान वही बता रहे हैं कि देखो, वो सब सोल हैं, तो अभी तो अब उनके लिए तो ना बर्थ है ना डेथ है, तो तुम उन्हें मारोगे भी तो कोई तो नुकसान नहीं है। अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को भी जाके बस AK-47 से उड़ा दें और बोले ये तो सोल है, ये तो एटर्नल है, इसको तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन का वहां पर धर्म था, वो क्षत्रिय थे। उनको दुश्मन से लड़ना धर्म है, इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम ऐसा विचार मत करो। लेकिन हम क्षत्रिय नहीं हैं। ओके, हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं और हमारा काम है स्टडी करना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। सो भगवान बताते हैं कि जो सोल है, ये इसे काट नहीं सकते, इसे जला नहीं सकते, इसे गीला नहीं कर सकते, इसे सुखा नहीं सकते, मतलब मटेरियल चीजें इसे टच तक नहीं कर सकती है। हाँ, इसका मतलब अगर हम अपने बॉडी में कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं तो वो सब हमारा बॉडी का एक्सपीरियंस रहता है। आप एग्जाम दे रहे हो और बहुत ही गर्मी है, बहुत ही हैवी गर्मी है, हाँ गर्मी के समय है, और फॉर्चुनेटली लाइट भी गोल हो चुकी है, पूरी तरीके से पूरा जा चुका है। और अभी आप बोल रहे हो कि ये सब क्या है, मैं ये सब में नहीं रह सकता, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, मैं अथॉरिटी से बात करूंगा। हाँ, तो ये सब आप ना बॉडी लेवल पर देख रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सोल के लेवल पर देखोगे, अरे आई एम सोल, तो मुझे तो कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई सुखा भी नहीं सकता, मुझे कोई गीला भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी इस सोल का ड्यूटी है कि ये अच्छे से स्टडी करे और एग्जाम लिखे। तो अभी अभी हम अपने ड्यूटी में अच्छे से फोकस करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज की अंडरस्टैंडिंग रहती है, जो आप पढ़े होगे, वो लोग रात को लैंप के नीचे पढ़ते हैं, जो स्ट्रीट लाइट रहती है ना उसके नीचे। हाँ, वैसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज की यही अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन इसे केवल ये थ्योरेटिकली जान लेना नहीं रहता है, इसे रियलाइज भी करना पड़ता है। इसे रियलाइज करने के लिए हमें पूरी भगवत गीता अच्छे से समझनी होगी। सो जब हम सोल के लेवल पर कुछ भी सोचते हैं या फिर हम जब हम उसे देखते हैं ना, तो ये हम जो अपने फिजिकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, हम इससे ऊपर उठ जाते हैं एक टाइप से, या ये हमें बहुत छोटी दिखने लगती है। जैसे एरोप्लेन से अगर कोई नीचे देखता है तो उसको बड़े बड़े घर भी एकदम माचिस की डिब्बी की तरह दिखते हैं। वैसे ही जब हम सोल के लेवल पर अपने कॉन्शियसनेस को पहुंचा देते हैं
तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो हमें बहुत छोटी दिखती है, अरे इतना सा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये वाली रहती है। लेकिन जब हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं, ओ हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो, मेरे से तो नहीं हो सकता है, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। हाँ, तो यही हमारे साथ होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये और हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, ओ सॉरी, सो अगर हम सोल हैं, ओके राइट, जी फॉर गुरु था, आई फॉर आइडेंटिटी था, जिसमें हम जाने कि हम सोल हैं। अभी हम सोल हैं तो अभी करना क्या है? तो दो ड्यूटीज बता रहे हैं, ये दोनों को करना जरूरी है। एक है स्पिरिचुअल और एक है मटेरियल, हम बोल सकते हैं, या फिर कंडीशनल ड्यूटी। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एक है कंडीशनल ड्यूटी। ओह, मैं थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि टाइम होने वाला है। सो धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, ओके। और हम कोई भी काम करना बंद नहीं कर सकते। हम अगर एक जगह बैठे भी रहेंगे तब भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ काम करेगा ही, मतलब हमारा नेचर ही है कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो हम क्या करते हैं? तो हम हमारा ये जनरली टेंडेंसी है कि हम कोई ना कोई सर्विस करेंगे। ओके, क्या सर्विस करेंगे? जैसे कोई देश की सेवा करेगा, कोई माता पिता की सेवा करेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, हाँ, तो वो भी अपने माता पिता की ही सेवा करता है उस तरीके से। हाँ, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, बैठ के बस फोन चला रहा है, तो वो अपनी सेंसेस की सेवा कर रहा है, एक टाइप से सेल्फिशनेस दिखाता है ये। तो वो अपनी सेंसेस की सेवा कर रहा है, अपनी आईज की, हाँ, अपने ईयर्स की, अच्छे अच्छे पिक्चर्स देख रहा है, तो वो अपने माइंड की सेवा में लगा हुआ है। माइंड कंट्रोल करना चाहिए तो माइंड ही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हम हमेशा कोई ना कोई तो सेवा करते ही रहते हैं, ये तो कंफर्म है। और हमारे ये भी टेंडेंसी है कि हम लव करते हैं जब किसी को, मतलब हम हमारी ये टेंडेंसी है कि या तो हम इंसान को करेंगे, या कुछ नहीं मिलता तो जानवर को कर लेते हैं, हाँ। और बच्चों को तो वो भी नहीं मिलते हैं तो वो गुड्डे गुड़ियों को लव करते हैं, हाँ, और उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। तो हमारी ये दो टेंडेंसी है, या तो हम सर्विस करते हैं, और हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए, हमें लव करना अच्छा लगता है, हाँ। हम पेरेंट्स को करते हैं, हमारे आसपास फ्रेंड्स को करते हैं, ये सब। नेक्स्ट, तो हमारा एक सोल का ना एक ये प्रॉपर्टी ही है कि वो तो सर्विस करेगा, और उसको कोई ना कोई उसका फ्रेंड चाहिए, हाँ, जिसको वो लव करेगा, ये दो चीज। सो अगर ये हमारी प्रॉपर्टी ही है, तो क्यों ना हम गॉड को ही सर्व करें और गॉड को ही लव करें, क्योंकि गॉड से ही तो ये सोल आया है, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, कि ये जो सोल है ये मेरा ही एक फ्रेगमेंटल पोर्शन है, पार्ट है। तो क्यों ना हम गॉड को ही सर्व करें। एक एनालॉजी भी देते हैं, जैसे कि हमारा हैंड है, हमारा हैंड है तो ये हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। वैसे ही सोल जो है वो भगवान का एक सन है, एक हिस्सा ही है भगवान से जो अलग हुआ है। तो जब हमारा हैंड जो है, अगर ये सोचेगा कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा, तो क्या ये खा सकता है? नहीं खा सकता है ये। लेकिन कौन खा सकता है? हमारा टंग, हमारे जो माउथ है वो खा सकता है। तो अगर ये हैंड हेल्प करता है हमारे माउथ को फीड करने में, तो क्या होगा? इससे जो हम फूड खाते हैं इससे एनर्जी बनेगा, और एनर्जी किससे मिलेगा? हैंड को ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से जब एक सोल जो है वो भगवान को ही लव करता है और भगवान को ही सर्व करता है, तो इससे क्या होता है? उस सोल को ही एनर्जी मिलती है। और इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो वही प्योरीफाई होता है। और यही तो हमारा मकसद था कि हमने इतने सारे जो बैड क्वालिटीज गेन कर लिए हैं, हाँ, नॉन सोल क्वालिटीज जो हमने गेन कर लिए हैं, हम इससे अपने आप को फ्री कर दें। ठीक है, तो तो हम कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं? अगर हम भगवान से लव करते हैं और उन्हें ही सर्व करते हैं। देखो, भगवान से लव और सर्व करने का मतलब है कि भगवान और उनके जो बाकी सोल्स हैं उनको भी, ऐसा नहीं कि बाकी सोल्स साइड केवल भगवान, नो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, 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 तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, और भी वो कुछ कुछ बताते हैं, जैसे कि अगर तुम भाग गए, लड़ाई से भाग गए, तो क्या होगा? तुम्हारी बदनामी होगी, हाँ। जो लोग तुमसे हार चुके थे वो लोग भी बोलेंगे कि देखो अर्जुन को, हाँ, उसने ऐसा काम कर दिया। तो ये लॉस ऑफ फेम होगा। भगवान अर्जुन को ये सब बताते हैं वर्ष नंबर 33-37 में। सो अब मैं ना एक चार्ट बनाया हूँ, इसमें अर्जुन के प्रॉब्लम्स और फिर भगवान के सॉल्यूशंस थे।
तो कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं कैसे मार सकता हूँ अपने ही फ्रेंड्स और ये रिलेटिव्स को। तो भगवान बोले कि वो लोग तो बॉडी है ही नहीं, वो लोग तो सोल हैं, तो वो तो कभी मरेंगे नहीं। ठीक है। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, मैं अपने ही लोगों को मार कर कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, अगर तुम लड़ोगे, हाँ, तो तुम या तो अर्थ में रूल करोगे, और अगर तुम हार भी गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे, तो दोनों तरफ से तुम्हारे लिए अच्छा है। अर्जुन फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंफुल हो जाएगा अपने ही लोगों को मारना। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये सिंफुल नहीं है, ये तो क्षत्रिय का काम ही है लड़ना। फिर अर्जुन बोलते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, इसका फैमिली का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि इसे कौन करा रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, तो भगवान ही इसका केयर करेंगे। इन डिसीजन, अर्जुन कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं भगवान आप मुझे गाइड करिए। तो फिर भगवान, इसका जो है वो आगे वर्सेस में है। 1 मिनट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 1 मिनट, हाँ टाइम हो गया है, मैं देखता हूँ कितने स्लाइड्स बचे हैं। टाइम हो जाएगा तो मैं बस 4 स्लाइड्स को और कवर करके इस सेशन को यहीं पे रोकता हूँ, फिर आगे के अगले सेशंस पे होंगे। ओके, मैं बस 4 स्लाइड्स को लूंगा, 4 या 5। तो अब भगवान एक अलग ही चैप्टर ओपन कर रहे हैं इसी चैप्टर में, उसका नाम है बुद्धि योग। ठीक है। बुद्धि योग या फिर भक्ति योग, इसको दोनों बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। मतलब कि आप लोग का एक बहुत फेवरेट श्लोक है, हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ कलेषु कदाचन। हाँ, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो ये वही वाला चीज है। आगे देखते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये वाला जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें ना कोई लॉस नहीं है। इसमें कोई भी लॉस नहीं है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो, आधे में अगर छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भगवान आने वाले हैं इसमें, ओके, नेक्स्ट अब देखिए। भगवान ये भी बता रहे हैं कि जिसके जो माइंड रहता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, कभी ये ऐसा रहता है कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, या फिर ऐसा सोचता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। जब हम केवल ऐसे ही चीजों में लग जाते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस रहती है वो मैनी ब्रांच्ड रहती है, तो हम कोई भी चीज डेडिकेटली नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर किसी की इंटेलिजेंस ऐसी है तो वो इसको रिजिडली डेडिकेटली नहीं कर पाएगा। जैसे आप इस रनर को देख रहे हैं, इसके दोनों पैर जो हैं वो जा चुके हैं, फिर भी ये दौड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल बोल सकते थे कि मेरे पास तो पैर नहीं है, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। लेकिन इनका जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड है कि हाँ मुझे तो दौड़ना है। तो वैसे ही अगर किसी का इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं रहता है तो फिर वो इसको रिजिडली नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इसे करते रहता है तो वो रिजिडनेस को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। नेक्स्ट। हम्म ये भी बता रहे हैं, द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल opulence एंड हु आर bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the supreme lord does not takes place। तो बता रहे हैं कि अगर बुद्धि योग या जो भक्ति योग है, अगर इसे करना है, तो अगर हमारा जो माइंड है वो सेंस एंजॉयमेंट्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं, एनआईटी वालों को जनरली सिगरेट का लग जाता है, मैंने देखा है। तो सिगरेट, अल्कोहल भी मैंने देखा है, फेयरवेल में करते हैं। अल्कोहल, सिगरेट, फोन तो बहुत कॉमन है, हाँ। और स्पोर्ट्स के बहाने इधर भाग जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट। अरे ये तो आप लोगों का फेवरेट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि।
इसका मतलब यह है, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कि मटेरियल वर्क। जैसे कि ये लोग क्या देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं एग्जाम का। तो एग्जाम में लिखना ये हमारे हाथ में था, लेकिन रिजल्ट ये चेक करने में है, यानी कि भगवान के हाथ में है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो भगवान यही बोलते हैं कि आपका राइट है लिखना। तो आपको उसे फुल एक्सटेंट से करना चाहिए, पूरा जोर लगा के करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट में आपका हाथ नहीं है। तो आप उसे डिटैच रहो। तो फिर अगर हम डिटैच रहेंगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम फल से ही डिटैच रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन क्या होगा उसे करने के लिए। तो इसका मोटिवेशन ये होगा कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, तो वो हमें, अगर हम पूरा उसको कवर भी नहीं कर पाए जैसे बुद्धि योग है, तो वो हमें एटलीस्ट प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई मतलब करेगा, मतलब कि हमारे जो माइंड है उसको वो पीस देगा। एटलीस्ट हमारे माइंड को पीस मिलेगा और वो प्यूरिफाई होते जाएगा, और अगली बार वो करेगा तो और भी ज्यादा एनर्जी से कर पाएगा। नेक्स्ट, लास्ट लास्ट फोर्थ अगर हम देखें, माते संगोस्त्व कर्मणि, डू नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क। हाँ, इस श्लोक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि देखो हमें अपने फल से अटैच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब को धीरे धीरे क्या लोग निकालेंगे कि आलस आलस निकालेंगे कि अरे फल से अटैच नहीं होना चाहिए, तो हम तो कैसा भी काम कर दें बस हो गया खत्म, बस निपटा दें बस खत्म। तो वी शुड नॉट बी अटैच टू इनएक्शंस। इस श्लोक को गलत वे में नहीं लेना चाहिए कि आलस ले लें या फिर काम को ही छोड़ दें कि अरे हमें तो फल से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, हमें ये जो वर्क है, हाँ, हम मैंने आपको दो चीज बताया था, भगवान को हम लव करते हैं और उनकी सर्विस करनी है। तो हमें ये जो वर्क है इसे हमें डेडिकेटली करना है। अब इसका फल क्या निकलेगा उस पे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये एक अलग ही सेक्शन हो जाता है, ये अगले सेशन में कवर होगा क्योंकि आज टाइम हो गया है। स्लाइड नंबर 63। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और क्विज जो है, यहाँ तक का क्विज अगले क्लास के 15 मिनट्स पहले होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट था तो अगले बार से थोड़ा सरल करेंगे। व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ, ये आपको कुछ चैप्टर बाद पता चलेगा, लेकिन मैं सरल शब्दों में बताऊं तो अभी तो इस लाइफ में यही है कि हम अपना स्पिरिचुअल और जो मटेरियल, जो हमारे ड्यूटीज है, हम उसको बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अब स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है और मटेरियल ड्यूटीज क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। लेकिन गोल ऑफ लाइफ अचीव कैसे होगा, तो अगर हम भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने लाइफ लॉन्ग एग्जीक्यूट करते हैं और भगवत गीता की डेली रीडिंग्स करते हैं थोड़े थोड़े देर में, हर कुछ दिनों बाद, या फिर डेली करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, डेली, हर दिन सोने के पहले या सुबह उठने के बाद, तो हम अपने लाइफ ऑफ गोल को अचीव कर ही लेंगे। भगवत गीता इसीलिए है। हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स वी हैव लर्न नाउ इन अवर लाइफ। देखिए, अभी हमारा इंटेलिजेंस जो है वो पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस है। अभी हम चीज़ों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारी नॉलेज अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो जब हम भगवत गीता में थोड़ा और आगे समझ लेंगे, बढ़ लेंगे, हाँ, और जब हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत प्योर हो जाएगा, तब हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी तक के लिए
अभी हम जितना भी चीज पढ़े हैं सीखे हैं हमें इसे अच्छे से समझना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब हम धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी तब हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए तो हमें इतना ही समझना चाहिए कि हम सोल हैं, हम सोल हैं और हमारी जो ड्यूटीज हैं दो है, स्पिरिचुअल और मटेरियल। मटेरियल ड्यूटीज है वो हमें करनी है, हमारी अभी स्टडी है। हाँ, और स्पिरिचुअल ड्यूटीज है तो उसके लिए हमें डेली गीता कुछ समय के लिए पढ़नी चाहिए। सी, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू डिटैच टू माया एंड अटैच टू गॉड। सो ये दोनों एक ही चीज है। अगर अगर हम अटैच टू गॉड करते हैं तो डिटैच टू माया ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अटैच टू गॉड करने के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी और भगवान भगवत गीता में और भी कुछ कुछ चीजें बताते हैं वो भी हमें करना होगा। आप भगवत गीता एज इट इज पढ़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं आप उससे परचेज भी कर सकते हैं भगवत गीता। Thank you, Anmol sir, for this wonderful session. And thank you everyone present here. Quiz for today's session will be notified in WhatsApp group. Okay. And see you all tomorrow in the second session. Thank you very much. You can leave now.